بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج ہمارا جو سبق ہوگا یہاں سے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کتاب و قلم۔ دیکھیں سب سے پہلے لکھیں بے شک یہ یا ضمیر اس کو بولتے ہیں، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کہلاتی ہے ضمیر متکلم۔ یہ کون سی ضمیر کہلاتی ہے؟ یہ متکلم کی ضمیر کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے میرا، میری، یہ اس کا معنی ہوتا ہے میرا، میری، ٹھیک ہے۔ یہ ضمیر کون سی کہلاتی ہے؟ یہ واحد متکلم کی ضمیر ہوتی ہے۔ یہ کون سی ضمیر ہوتی ہے؟ واحد متکلم۔ کون سی ضمیر ہوتی ہے؟ واحد متکلم۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میرا، میری۔ کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ میرا، میری۔ یہ ضمیر کون سی کہلاتی ہے؟ متکلم، واحد متکلم۔ کون سی؟ واحد متکلم۔ یہ باتیں ساتھ کے ساتھ لکھ لیں، یہ آپ کو بہت فائدہ دے گی۔ واحد متکلم، یہ ضمیر کون سی کہلاتی ہے؟ واحد متکلم۔ اس کا یہ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے ضمیر، ضمیر لکھا ہے نا، واحد ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے میرا، میری۔ یہ بار بار آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ واحد متکلم کی ضمیر ہے، مطلب ہوگا میرا، میری۔ اس کا معنی کیا ہوگا؟ میرا، میری۔ جلدی لکھیں، جلدی آ چلائیں۔ یا ضمیر ہے واحد متکلم کی، اس کا جی کیا کہہ رہے ہیں؟ جتنے جوڑ دیں ایک کو چھوڑ دیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے میرا، میری۔ یہ ضمیر کون سی کہلاتی ہے؟ واحد متکلم، واحد متکلم کی، واحد متکلم کی ضمیر کہلاتی ہے۔ اور اس کا معنی ہوتا ہے میرا، میرا، میری، جی۔ یہ میں نے لکھا ہوا جی، جلدی کریں، ہاتھ چلائیں بالکل۔ اب جیسے میں نے کہا، میں نے ادھر لکھا کتابن، دیکھیں میں نے کہا کتابن، تو اس سے مراد ایک کتاب ہوگی۔ اب میں چاہتا ہوں، میں کہوں گا یہ میری کتاب، تو کیا کروں گا؟ میں کہوں گا نہیں، میں کہوں گا کتابی۔ کیا بولوں گا؟ بس اس کا معنی ہوگا میری کتاب۔ بس اس کا معنی ہوگا میری کتاب۔ کتابی تو کیا معنی ہو جائے گا؟ میری کتاب۔ وہاں فوکس کریں۔ کتابی کا معنی کیا ہوگا؟ کتابی کا معنی کیا ہوگا؟ کیا کہہ رہے ہیں جی؟ کتابن، کتابن، اور یہاں پہ ہم کہیں گے کتابی۔ اب یا ضمیر لگا دی تو معنی کیا ہو گیا؟ میری کتاب۔ کیا معنی ہو جائے گا؟ میری کتاب۔ اب کہتے ہیں مائی بک، عربی میں اس کو بولتے ہیں کتابی۔ کیا بولتے ہیں؟ کتابی۔ سب بولے کیا بولتے ہیں؟ کتابی۔ اب یہ ہے کتابن۔ اب یہ اس کی نسبت کسی کی طرف نہیں ہے، تو کتاب ایک کتاب، میں نے کہا میری کتاب، تو کیا ہوگا؟ کتابی۔ مانا ہو جائے گا میری کتاب، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیں میں نے کہا قلمن، جی قلمن، میں نے کہا قلمن، تو ایک قلم مراد ہوگا اس سے، قلمن ایک پین مراد ہوگا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اس کی نسبت میری طرف ہو جائے، تو میں کہوں گا قلمی۔ کیا بولوں گا؟ قلمی۔ اب یہ دیکھو قلمی، معنی کیا ہوگا اس کا؟ میرا،
मेरा पेन हो जाएगा या मेरा कलम, ये हो जाएगा माना, ठीक है। कलमी तो माना क्या होगा? मेरा कलम, मेरा कलम। कलमी इसका माना क्या होगा? मेरा कलम, मेरा कलम। बातें नहीं करें इधर तो कुछ कलम, लिख दें जैसे भी जो भी, लेकिन बातें ना किया करें आप, वरना क्लास से आउट कर दूंगा। मोबाइल वीडियो बन रही है फिर भी आप इधर देखें बस। कलम मैं बार बार बता दूँ, कलम कोई कलम, लेकिन बोला कलमी माना क्या होगा? मेरा कलम, मेरा पेन। इसलिए बोला कि कम से कम आप अपना हाथ दे चलाएं। जैसे मैंने कहा वाराकुन, इसका माना क्या होगा? कल बताया था, याद है? कागज। अब कोई भी कागज मुराद है, वाराकुन। अब मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा कागज, तो क्या करूँगा बताएं? वाराकी, ये वारा जब मैंने ये कह दिया वारा की, तो अब क्या माना क्या होगा? मेरा कागज, मेरा कागज। इससे ये मुराद हो जाएगा वारा की, मेरा कागज। अब कहा वारा कौन, ये कहा वारा कौन, तो कोई कागज हो सकता है, लेकिन जब आपने बोल दिया वारा की, तो इसका क्या माना होगा? मेरा कागज। इसका मैं टेस्ट भी लूंगा बेटा कल इंशाल्लाह ताला। मैंने क्या मक्तबुन, जी मैंने कहा मक्तबुन, इसका माना होगा डेस्क। अब मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा डेस्क, तो मैं क्या करूँगा? मक्तबी। क्या बोलूँगा? मक्तबी। तो इसका माना क्या हो जाएगा? मेरा डेस्क। क्या माना हो जाएगा? मेरा डेस्क। लिखो ना, क्यों नहीं लिख रहे बेटे? लिखो, अपनी चीज़ें निकाल के बैठा करो, अपने पास रखो, दूसरों को परेशान कर रहे हो, दूसरों को तो परेशान ना करो, ठीक है। मक्तबुन डेस्क। अब मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ संगीत लगाना चाहता हूँ, तो माना क्या हो जाएगा? मेरा डेस्क, ठीक है। आपने ये देखना कि हमारी उर्दू के अंदर वो लफ्ज़ मुज़क्कर इस्तेमाल होता है, मुनस। किताब, मेरी किताब, तो ये उर्दू में किताब और मुनस इस्तेमाल होता है। अरबी में अगर से मुज़क्कर है। जी मैंने कहा मक़अदुन, बैठने की जगह मक़अदुन। मैंने कहा तवज्जो, मक़अदुन। मैंने कहा मक़अदुन, तो ये हुई, इससे मुराद भी डेस्क ही है, लेकिन फ़र्क मैंने बता दिया, बैठने में है। अब मैंने कहना चाहता हूँ मेरा डेस्क, तो मैं क्या करूँगा बताएं? मक़अदी। वेरी गुड। ये मक़अदी, याज़मी लगा लें बस, मक़अदी। तो इसका क्या माना क्या होगा? मेरा डेस्क। क्या होगा इसका, इससे मुराद क्या होगा? हाँ, मक़अदुन यानी बैठने की जगह डेस्क। तो इसका ठीक हो गया। जल्दी है जी, जल्दी करें, जल्दी। वजहुन, सबकी आवाज आनी चाहिए जी। वजहुन से क्या मुराद है? चेहरा। वजहुन से क्या मुराद है? वजहुन किसको बोलते हैं? वजहुन किसे बोलते हैं? चेहरे को। अब मैं कहना चाहता हूँ मेरा चेहरा, तो क्या हुआ? माशाल्लाह, समझ गए। वजही, वेरी गुड, वजही। अब इससे क्या मुराद होगा? मेरा चेहरा। क्या मुराद होगा? मैंने कहा वजहुन, तो इससे मुराद था चेहरा। मैं कहना चाहता हूँ मेरा चेहरा, तो यहाँ से भी लगा देंगे वजही, मेरा चेहरा, ठीक है। मैं कहना चाहता हूँ जैसे अनफुन, अनफुन का मतलब क्या कल बताया था ना। अब मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी नाक, तो क्या होगा? अनफी। सब बोले, क्या होगा? अनफी। अनफी।
इससे क्या مراد ہوگا انفی, इससे क्या مراد ہوگا میری ناک, میری ناک. میں نے کہا انفن تو اس کا مراد ہوگا ناک, لیکن میں کہنا چاہتا ہوں میری ناک تو میں یا سبھی لگا دوں گا واحد مطلب تکلیف کی, میں کہوں گا انفی تو اس سے کیا مراد ہوگا میری ناک. ٹھیک ہے جی. آگے میں دینا چاہتا ہوں راسن, اس سے کیا مراد ہوگا میرا سر. نہیں میرا سر. اس سے تو صرف راسن, اس سے مراد تو صرف سر ہوگا نا. اب میں یا زمین لگاؤں گا تو میں کہوں گا راسی, اس سے کیا مراد ہوگا میرا سر. راسی سے مراد ہوگا میرا سر. ٹھیک ہے. اب میں نے کہا جی فامن, اس سے کیا مراد ہوگا فامن, فامن سے کیا منہ, صرف منہ. میں کہنا چاہتا ہوں میرا منہ تو کیا ہوگا فامی, کیا ہو جائے گا فامی. اس سے کیا مراد ہوگا میرا منہ, اس سے کیا مراد ہوگا میرا منہ. میں نے کہا فامن, میں نے کہا فامن تو اس سے مراد ہوگا منہ. میں نے کہا فمی تو اس سے کیا مراد ہوگا میرا منہ. فامن کا مطلب کیا ہوگا منہ. میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرا منہ تو اس کے لیے عربی میں کیا ہوگا فمی. کیا ہوگا عربی میں فمی. کیا ہوگا عربی میں فمی. اس سے مراد کیا ہوگا میرا منہ. اب لسان, جیسے ہے بیٹے لسان, لسان کا مطلب ہوگا زبان, لسان. ٹھیک ہے. لسان, لسان. اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ میری زبان تو آ جائے گا لسانی. کیا ہوگا لسانی. اس سے کیا مراد ہوگا لسانی میری زبان, میری زبان. میں نے کہا لسانن, میں نے کہا لسانن, کیا بولا لسانن تو اس سے مراد ہوگا زبان. جب میں نے کہا لسانی اس سے کیا مراد ہوگا میری زبان. اب دیکھیں, اب آپ کا جملہ آ رہا ہے بڑا. اب آئے گا اللہ ربی. آپ دیکھیں اللہ جی, اللہ ربی, اللہ ربی, اللہ ربی تو اس سے مراد ہوگا اللہ, اللہ میرا رب ہے. ٹھیک ہے. اللہ میرا رب ہے. رب, یہ کوئی آپ کا مبتدا خبر ہو جائے گا. یا ضمیر میرا, ربی میرا رب, اللہ میرا رب ہے. رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا. ٹھیک ہے. اللہ میرا رب ہے تو یہ بن جائے گا اللہ معرفہ ہے. یہ اس کو بنائیں گے مبتدا, عقل والی بات. کیا بنائیں گے مبتدا بنائیں گے. کیا بنائیں گے مبتدا. اور مبتدا جناب مرفوع ہوتا ہے. مبتدا مرفوع ہوتا ہے. مبتدا مرفوع ہوتا ہے. تو یہ رب نکرہ ہے. یہ اصل میں یہ تھا, یہ رب نکرہ ہے. رب کیا ہے نکرہ. اور کل ہم نے قاعدہ بتایا تھا, توجہ یہاں, کل ہم نے قاعدہ بتایا تھا کہ اگر نکرہ کے بعد معرفہ اسم آ جائے تو وہاں پہ ترکیب ہوتی ہے مضاف اور مضاف الیہ کی ترکیب ہوتی ہے. کون سی یہ بار بار قاعدے بتائیں گے. اب رب کا نکرہ اور آگے یہ جو ضمیر ہے یہ ہے معرفہ, یہ معرفہ. اب نکرہ کی اضافت معرفہ کی طرح وہی تو یہاں پہ ہوگا مضاف اور مضاف الیہ کی ترکیب. کون سی ہوگی یہ ہوگا. اس کو بنائیں گے مضاف. کیا بنائیں گے اور اس ضمیر کو بنائیں گے مضاف الیہ. کیا بنائیں گے مضاف الیہ. یہ لکھ لیں, بار بار یہ بات بتاؤں گا انشاءاللہ. ضمیر کو بنائیں گے مضاف الیہ. ضمیر کو کیا بنائیں گے مضاف الیہ. ضمیر کو کیا بنائیں گے مضاف مضاف الیہ. الیہ. اور یہ مضاف الیہ ہو گیا, یہ بن جائے گا خبر. کیا بنے گا خبر. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. خبر کیا ملی اللہ میرا رب ہے. کل ہم نے بتایا تھا مبتدا خبر کے ترجمے میں ہے آتا ہے. ٹھیک ہے. بار بار بتائیں گے اللہ میرا رب ہے, اللہ ربی, اللہ میرا رب ہے. میرا کے آگے لکھنا ہے. ہاں بالکل, یہاں پہ جگہ نہیں ہے نا بیٹا. اللہ ربی, اللہ میرا رب ہے.
अल्लाह रब्बी, अल्लाह मेरा रब है। अल्लाह रब्बी, अल्लाह मेरा रब है। अल्लाह रब्बी, अल्लाह मेरा रब है। कोशिश करो मैं 4-5 बेटे बातें नहीं, इधर तवज्जो, इधर मुझसे बोलो, बातें नहीं कर, ठीक है। मैं 4-5 बार लिखने के बाद बोलता हूँ, फिर भी आप इतनी देर में लिखे या करें। आ गया अल इस्लामु, अल इस्लामु, अल इस्लामु दीनी, जी अल इस्लाम दीनी, इससे मुराद क्या होगा? इस्लाम मेरा दीन है। इस्लाम मेरा दीन है। मेरा दीन, जगह नाम है, ठीक है। ये हुई इस्लाम मारफा, ये बना मुब्तदा, ठीक है। दीन नकरा मारफा, मुदा मुदा बनेगी, ये बनती है ना खबर। जुमला इसमिया खबरिया, अल इस्लाम दीनी, इस्लाम मेरा दीन है। इसके ऊपर लिखे सब लिखा हुआ है, अल इस्लाम दीनी, इस्लाम मेरा दीन है। अल इस्लाम दीनी, इस्लाम मेरा दीन है। अल इस्लाम मारफा है, मुरब्बिल नाम है, शुरू में अलिफ नाम है, इसे बनाएंगे मुब्तदा। दीनी मुदा मुदा बने बनाएंगे, मुदा मुदा बने खबर, मुब्तदा खबर, जुमला इसमिया खबरिया। मैं लिख देता हूँ, जुमला इसमिया खबरिया, जुमला इसमिया खबरिया, जुमला इसमिया खबरिया, जुमला इसमिया खबरिया। अल इस्लाम दीनी, इस्लाम मेरा दीन है। अल इस्लाम दीनी, इस्लाम मेरा दीन है। अल इस्लाम दीनी, इस्लाम मेरा दीन है। अल इस्लाम को बनाया हमने मुब्तदा, क्योंकि ये है मारफा। दीन नकरास या समीर मारफा, मुदाफ मुदाफ इलैहि बन गया खबर, मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला इसमिया खबरिया। खबर क्या मेरी? इस्लाम मेरा दीन है। अल इस्लाम दीनी, इस्लाम मेरा दीन है। अल्लाह रब्बी, अल्लाह मेरा रब है। अल्लाह रब्बी, अल्लाह मेरा रब है। अल इस्लाम दीनी, इस्लाम मेरा दीन है। अल इस्लाम दीनी, इस्लाम मेरा दीन है। आगे देखिए, मुहम्मदुन नबीशी, मुहम्मदुन, पहले अल कुरान, मदीना, अल कुरानु, अल कुरानु किताबी, अल कुरानु किताबी, क्या माना होगा इसका? अल कुरानु किताबी, तो अल कुरान ये है मुब्तदा, ऐसे बनाएंगे मुब्तदा, क्या बनाएंगे? और किताब नकरा ज़मीर मारफा, मुदा मुदा बनेगी, ये बनेगा खबर। क्या बनेगा? तो खबर क्या मिली? जुमला इसमिया खबरिया। ये जुमला इसमिया खबरिया, मैं लिख दूँ, जुमला इसमिया खबरिया, जुमला इसमिया खबरिया। क्या खबर मिली? कुरान मेरी किताब है। अल कुरान किताबी, कुरान मेरी किताब है। अल्लाह रब्बी, अल्लाह मेरा रब है। अल इस्लाम दीनी, इस्लाम मेरा दीन है। या कुरान ये है मारफा, किताब नकरा ज़मीर मारफा, मुदा मुदा बनेगी खबर, मुब्तदा खबर, जुमला इसमिया खबरिया। खबर क्या लिखी है? अल कुरान किताबी, ये जुमला 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 पहले भी आपने लिखा है, कुरान मेरी किताब, ये किताब में, कुरान मेरी किताब है, ठीक है। कुरान मेरी किताब है, कुरान मेरी किताब है।
یہ نہیں یہ ہو گیا قرآن میری کتاب ہے. ٹھیک ہے جی. القرآن و کتابی قرآن میری یہ سب جملہ اسمیہ خبریہ بس میرے اوپر ڈال دیں ہیڈنگ جملہ اسمیہ خبریہ تو نیچے سارے جملہ اسمیہ خبریہ میں ڈال دیں. ٹھیک ہے. اب آ گیا محمدن. محمدن نبی شی. ٹھیک ہے جی. آپ کی کتاب میں بھی لکھا کرتے تھے کر دے وہی مبتدا خبر مبتدا یہ مدام داخلے کی یہ خبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد میرے نبی ہیں. جملہ اس میں خبریہ محمد میرے نبی ہیں. محمدن میرے ٹھیک ہے محمد میرے نبی ہیں. محمدن نبی شی محمد میرے نبی ہیں. تو یہ آپ کا جملہ اس میں خبریہ بن جائے گا. جملہ اسمیہ خبریہ. ٹھیک ہے. یہ وہی جملہ اس میں خبریہ ہے. محمد النبی شی محمد مبتدا نبی مضاف مضاف لے کے خبر خبر کیا ملی کہ محمد میرے نبی ہیں. میں نے بولا اوپر آپ لکھے بس جملہ اسمیہ خبریہ نیچے سارے جملہ اسمیہ خبریہ میں ڈالتے ہیں. یہ سارے جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا ہے. ٹھیک ہے. آگے اس کے بعد ہے الکعبۃ قبلتی. مانا آپ بھی کرتے ہیں الکعبۃ قبلتی. قبلتی یہ مبتدا یہ مضاف مضاف لے کے خبر جملہ اسمیہ خبریہ. کعبہ کعبہ میرا قبلہ ہے. کعبہ میرا قبلہ ہے. ٹھیک ہے. الکعبۃ قبلتی کعبہ میرا قبلہ ہے. الکعبۃ قبلتی کعبہ میرا قبلہ ہے. الکعبۃ قبلتی کعبہ میرا قبلہ ہے. الکعبۃ یہ معرفہ ہے یہ مبتدا قبلتی مضاف مضاف کے یہ خبر. ٹھیک ہے. مبتدا خبر کعبہ میرا قبلہ ہے. یہ بنے گا آپ کا جملہ اسمیہ خبریہ. یہ سارے وہی جملے بن رہے ہیں. جملہ اسمیہ خبریہ جملہ اسمیہ خبریہ. خبر کا میننگ کہ کعبہ میرا قبلہ ہے. آگے دیکھیں جی اسمی اسمی مدینہ اسمی. اس کا معنی کیا ہوگا میرا نام. آپ اپنا نام لگا سکتے ہیں جو بھی. یہ اسمی میرا نام یہ ہوگا مبتدا. ٹھیک ہے. عبداللہ میں اپنا نام لگا دیا عبداللہ. یہ خبر مضاف مضاف ہے. اسمی اسمی میرا نام عبداللہ ہے. میرا نام عبداللہ ہے. تو آپ بھی اسمی عبداللہ میرا نام عبداللہ ہے. آپ اپنا نام اس کی جگہ عبداللہ کی جگہ اپنا نام لکھ دیں جو بھی آپ کا نام ہے. اسمی علی
اسمی اویس جو بھی آپ کا نام ہے لکھ دیں. ٹھیک ہے, ایسے آپ بول سکتے ہیں اسمی عبداللہ. ٹھیک ہے جی, یہ وہی ہے جملہ اسمیہ خبریہ, یہ وہی ہے جملہ اسمیہ خبریہ. جملہ اسمیہ خبریہ, اسمی عبداللہ, اس کا معنی ہوگا میرا نام عبداللہ ہے. اسمی عبداللہ, میرا نام عبداللہ ہے. میں نے ایک ایک چیز یہاں پر لکھ دی, آپ ساتھ والی طرح دیکھیں, ادھر دیکھیں, ادھر دیکھیں, ایک ایک چیز یہاں پہ لکھ دی ہے جو میں بول رہا ہوں اور لکھ رہا ہوں. ایک ایک چیز لکھ رہا ہوں اور آپ اس کو 5 بار وہ بات بول رہا ہوں, لکھنے کے بعد بھی بول رہا ہوں. آپ اس کو دیکھیں اور لکھتے رہیں. اسمی عبداللہ, میرا نام عبداللہ ہے. اسمی مضاف مضاف بولو گے مبتدا, عبداللہ مضاف مضاف بولو گے خبر. میرا نام عبداللہ ہے. اسمی عبداللہ. جی, آپ کا جو نام بھی ہے آپ اپنا نام لکھتے ہیں. آپ بیٹے بات نہیں کریں, آپ کا جو بھی نام ہے وہ لکھ دیں. مسموکا, مسموکا. تو یہ آپ کا جملہ اسمیہ خبریہ بنے گا. یہ سوالیہ ہے ماء استفہام کا. آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ جی, مسموکا عربی میں مسموکا, مسموکا, مسموکا. یہ مسموکا, مسموکا, آپ کا نام کیا ہے؟ 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 آگے جو ہے وہ آپ نے اس کو دیکھ لیا ہے. آگے کہتے ہیں وجہن. آپ سب بولیں وجہن کا مطلب چہرہ. یہ نیچے والی بات بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, وجہن چہرہ. سب بولیں وجہن چہرہ. وجہن چہرہ. رأسن سر. رأسن سر. رأسن سر. انفن ناک. انفن انفن ناک. فمن منہ. فمن. منہ. اس کو بولتے ہیں, یہ تو گال ہے. فمن 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 لسانن زبان. لسانن زبان. لسانن. زبان. اب یہ سبب سمجھنے میں مشکلات تو نہیں ہے, کلیئر ہو گیا بالکل. اب آپ اس کو بیان بھی کر سکتے ہیں, تیاری کر کے آئیں تو آپ نے بیان بھی کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, آگے جی کتابون, کتاب, کتابون. کتاب. اور انگلش میں بولتے ہیں نا بک, عربی میں اس کو کتاب بولتے ہیں. کتابون اردو میں بھی کتاب بولتے ہیں. ٹھیک ہے, آگے ہے اللہ, اللہ اس میں جلالت ہے. یہ آگے ربون, رب کا مطلب ہوتا ہے میں نے بتایا پالنے والا. کیا ہوتا ہے؟ پالنے والا. رب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پالنے والا. کل ہم نے لکھا تھا, یاد آئے تو رب العالمین. یاد آ رہا ہے؟ نہیں آیا یاد؟ جی, رب العالمین. تو یہ رب آیا یہاں پہ. ٹھیک ہے, رب العالمین یہ صفت بنی تھی کس کی؟ اللہ اس میں جلالت کی. ٹھیک ہے, اللہ عالمین کو کا پالنے والا ہے. اللہ عالمین کا پالنے والا ہے. کل بتایا تھا نا میں نے. اب آپ کو ایک ایگزامپل دیا. ٹھیک ہے, آگے یہ کل لکھا ہوا, کل کا لکھا ہوا دیکھیں گے تو ٹھیک ہے. اچھا کیا. اسلام, اسلام, دین, دین, القرآن, قرآن, نبی, نبی, الکعبۃ, کعبہ, قبلۃ, قبلہ, اور اسم, نام. 25 کلمات, یعنی کہ 25 کلمات, 25 کلمات. اب یہ آپ نے دیکھیں خالی جگہ پر کرنی ہے. ابھی دیکھیں خالی جگہ, یہ کتاب ابھی تک آپ
जिसके पास नहीं है वो किताब ले लीजिए भाई, खाली जगह आपने पुर करनी है। फिर हम कल इंशाल्लाह सबक नंबर 3 पढ़ेंगे, ठीक है इसका जी। हाजिर है सब? हाँ जी। हाजा लिसानुन, बेशक आप इसके साथ लिख लें पेंसिल के साथ, जिसके पास किताब है जल्दी कर लें। हाजा लिसानुन, हाजा लिसानुन। लामे मील बताई भी थी आपको ये जी जी। हाजा लिसा, हाजा अनफुन, हाजा जल्दी, हाजा अनफुन लिख दिया। इसके ऊपर लिखना है आपको हाजा अनफुन, आगे लिखें हाजा फमुन, हाजा फमुन, हाजा अनफुन, हाजा फमुन जी। हाजा अनफुन, हाजा साथ बोलते भी नहीं, हाजा आगे हाजा फमुन, हाजा आगे हाजा लिसानुन। भाई बोर्ड पे लिखो ये क्या हो जाएगा, हाजा लिसानुन बना है सब जी। हाजा अनफुन देखे ना भाई बोर्ड पे लिखो अनफुन, हाजा अनफुन, पहले नंबर में आएगा हाजा अनफुन, क्या आएगा? दूसरे पे आएगा हाजा फमुन, क्या आएगा? तीसरे में आएगा हाजा लिसानुन, हाजा लिसानुन, हाजा लिसानुन, हाजा वजहुन, हाजा वजहुन, हाजा रअसुन, हाजा रअसुन। इधर देखिए, इसके ऊपर लिखें, इसके ऊपर हल करें जल्दी जल्दी। आगे इन्होंने देखे आपने लगाना है इधर हाजा अंती, हाजा हाजा हाजा, आगे हाजा लिसानी, हाजा हाजा फमी, हाजा किताबी, हाजा हाजा कलमी, हाजा मक्तबी, हाजा मक्तबी, हाजा मक्तबी, हाजा जी। बस जी नारे मीन पढ़ेंगे हम इस वक्त में इंशाअल्लाह। लफ्ज़ की हमने कितनी किस्में पढ़ी थी? 2 जी। लफ्ज़ की इक़साम कितनी थी? 2 कौन कौन सी? मुफ़रद और मुरक्कब। लफ्ज़ की इक़साम कितनी थी? 2 जी। लफ्ज़ की इक़साम कितनी थी? 2 सब हाज़िर हैं? कौन कौन सी थी? मुफ़रद बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मैं तलफ़्फ़ुज़ भी लिख रहा हूँ, मुफ़रद और मुरक्कब, मुफ़रद और ये किसकी किस्म थी? लफ्ज़ की इक़साम थी। किसकी इक़साम थी? लफ्ज़ की कितनी इक़साम थी? 2। कौन कौन सी? मुफ़रद और मुरक्कब। मुफ़रद और मुरक्कब। लफ्ज़ की कितनी इक़साम थी? कौन कौन सी? और मुरक्कब। फिर कलमे की इक़साम पढ़ी थी, याद है? कलमे की कितनी इक़साम थी? कलमे की कितनी इक़साम थी? मदीना, कलमे की कितनी इक़साम थी? कौन कौन थी? इस्म, फेल और हर्फ। ये कलमे की इक़साम थी। किसकी थी? कलमे की। कलमे की कितनी किस्में थी? कौन कौन थी? कौन कौन सी? इस्म, फेल और हर्फ। मुफ़रद हो गया था। आज हम मुरक्कब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आइए पहले लफ्ज़ की 2 किस्में आपने बनाई थी, मुफ़रद और मुरक्कब। मुफ़रद कल हमने पढ़ा था, आज हम मुरक्कब पढ़ेंगे। मुरक्कब किसे बोलते हैं? सबसे पहले लफ्ज़ मुरक्कब, लफ्ज़ मुरक्कब की तारीफ लिखें। लफ्ज़ मुरक्कब की तारीफ
लफ्ज़ मुरक्कब की तारीफ लिखें, इसे बोलते हैं लफ्ज़ मुरक्कब। जी लिखें, मुरक्कब वो लफ्ज़ है, मुरक्कब वो लफ्ज़ है, बोलते जाएं, मुरक्कब वो लफ्ज़ है जो दो या दो से ज़ाइद कलमों का मजमुआ हो। ठीक है, मुरक्कब वो लफ्ज़ है, वो लफ्ज़ जो दो या दो से ज़ाइद कलमों का मुरक्कब हो। मुरक्कब वो लफ्ज़ जो दो या दो से ज़ाइद कलमों का मजमुआ हो। मुरक्कब वो लफ्ज़ जो दो या दो से ज़ाइद कलमों का मजमुआ हो, उसे बोलते हैं मुरक्कब। मुरक्कब किसे बोलते हैं? मुरक्कब वो लफ्ज़ जो दो या दो से ज़ाइद कलमों का मजमुआ हो, उसे कहा जाता है मुरक्कब। क्या कहते हैं? मुरक्कब। अब इसकी मैं मिसालें दे रहा हूँ, तारीफ लिख ली। मुरक्कब वो लफ्ज़ जो दो या दो से ज़ाइद कलमों का मजमुआ हो। आपकी किताब में भी लिखी हुई है ये तारीफ, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, जल्दी इसकी मिसालें देखें, जैसे इसकी अमसिला देखें, मिसालें देखें, मुरक्कब की मिसालें। अभी आपने जो पढ़े हैं ना, अल्लाहु रब्बी, ठीक है, अल-काबतु क़िबलती, इस्लामुद्दीनी, ये सब मुरक्कब ही है, ये सब मुरक्कब ही है। लेकिन फिर भी देखें, गुलाम ज़ैदिन, गुलामु ज़ैदिन, जी गुलामु ज़ैदिन क्या है? गुलाम ज़ैदिन, ये इसकी एक मिसाल दी है। अब ये क्या है? ये मुरक्कब है। ठीक है, मुरक्कब वो लफ्ज़ जो दो या दो से ज़ाइद कलमों का मजमुआ हो से मुरक्कब कहते हैं। गुलाम नज़र आया, इसे हम बनाएंगे मुदाफ, और ज़ैदिन ये मार्फा, इसे हम बनाएंगे मुदाफ इलैहि। क्या बनाएंगे? ये बनेगा मुरक्कब इज़ाफ़ी। क्या बनेगा? मुरक्कब इज़ाफ़ी में लिख दिया यार, ये बनेगा मुरक्कब इज़ाफ़ी। इसका माना होगा ज़ैद का गुलाम, ज़ैद का ये माना होगा ज़ैद का गुलाम। ये मैंने मिसाल दी है मुरक्कब की, और ये बार बार आएगा। ठीक है, मिसालें मैं पेश करूँ। गुलाम ज़ैदिन, ये गुलाम मुदाफ है, ज़ैद मुदाफ इलैहि है, ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है। मतलब होगा ज़ैद का गुलाम। क्या माना होगा? ज़ैद का गुलाम। अच्छा, मुदाफ और मुदाफ इलैहि हो ना, पहला ये कायदा लिख लो बेशक, या समझ लो। पहला मार्फ ये नजर है, उसके बाद मार्फा आ जाए तो वहाँ भी जो तरकीब होती है मुदाफ मुदाफ इलैहि की तरकीब होती है। पहला इसम नकरा हो, उसके बाद मार्फा आ जाए, वहाँ पर जो तरकीब होती है मुदाफ मुदाफ इलैहि की तरकीब होती है। अगर ये कायदा आपको आ गया, आपको कुरान करीम का एक बहुत बड़ा इल्म आपको आ गया। आप यहाँ जहाँ आप देखेंगे नकरा के बाद मार्फा आ रहा है तो तरकीब वही मुदाफ मुदाफ इलैहि की होगी। ठीक है, हो गया भाई? ये लिख लिया आपने, मुरक्कब इज़ाफ़ी लिख लिया आपने जी। लिख दे ब्रैकेट डाल के लिख दे, बिल्कुल ये तर्जुमा है उसका, इसका तर्जुमा है। ठीक है, ज़ैद का गुलाम, मुदाफ गुलाम है और ज़ैद मुदाफ है। ये हो गया मुरक्कब इज़ाफ़ी। क्या हुआ? मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब इज़ाफ़ी।
दूसरी मिसाल, एक और मिसाल देखेंगे, ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैदुन, सब पढ़ेंगे साथ, ज़ैदुन क़ाइमुन, 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 ये भी मुरक्कब है, लेकिन ये मुरक्कब ताम है, ये मारफा। और हमारा वो कल वाला कायदा याद रख लें, पहले देख लें आप, ये से हम बनाएंगे मुब्तदा, इसे हम बनाएंगे खबर, ये है मारिफा, ये है नकीरा, ये कलिमा ऐसा होगा, ज़ैद खड़ा है, ज़ैद खड़ा है, ज़ैद खड़ा है, ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैदुन मारफा है, इसे हम मुब्तदा बनाएंगे, क़ाइमुन नकरा है, इसे हम खबर बनाएंगे। ठीक है, ये है मारफा, ये है नकरा, मतलब होगा कि ज़ैद खड़ा है, मतलब क्या होगा कि ज़ैद खड़ा है, ज़ैद खड़ा है, ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैदुन मारफा है। और ये कायदा याद रख लें, पहला इसम मारफा हो, उसके बाद नकरा आ जाए, तो यहाँ पे मुब्तदा खबर की तरकीब होती है। पहला इसम मारफा हो, उसके बाद नकरा आ जाए, तो यहाँ पे जो तरकीब होती है मुब्तदा खबर की तरकीब होती है। पहला इसम मारफा हो, उसके बाद नकरा आ जाए, तो तरकीब कौन सी होती है? मुब्तदा खबर की तरकीब होती है। और अगर पहला इसम नकरा हो और उसके बाद मारफा आ जाए, तो वहाँ पे मुदाफ और मुदाफ इलैहि की तरकीब होती है। तो माना क्या होगा? और मुब्तदा खबर के तर्जुमे में क्या कहते हैं? ज़ैद खड़ा है, ये है मुरक्कब, ये भी लिख लो, लेकिन ये मुरक्कब ताम है। क्या है जी? मुरक्कब ताम है, ये मुरक्कब ताम है। एक मुरक्कब नाकिस होता है, मुरक्कब इज़ाफ़ी मुरक्कब नाकिस है, लेकिन ये मुरक्कब ताम है। ठीक है, ज़ैद खड़ा है, ये मुरक्कब ताम है, ज़ैद खड़ा है, ये मुरक्कब ताम। लिख लिया जनाब? जी, लफ्ज़ मुरक्कब की अब अक़साम, लफ्ज़ मुरक्कब की अभी हमें तारीफ जानी है। अब लफ्ज़ मुरक्कब की अक़साम, सब बोलें, लफ्ज़ मुरक्कब की अक़साम, सब बोलें जी, लफ्ज़ मुरक्कब की अक़साम, लफ्ज़ मुरक्कब की अक़साम। इसकी भी दो किस्में हैं, कितनी? दो किस्में हैं। इसकी कितनी किस्में हैं? इसकी दो किस्में हैं। एक को बोलते हैं मुरक्कब मुफीद, मुरक्कब मुफीद, एक को बोलते हैं मुरक्कब गैर मुफीद, मुरक्कब गैर मुफीद। ठीक है, मुरक्कब की दो किस्में हैं। लफ्ज़ मुरक्कब की अक़साम, मुरक्कब की दो किस्में हैं। एक को बोलते हैं मुरक्कब मुफीद और एक को बोलते हैं मुरक्कब गैर मुफीद। सही है बेटे? बिल्कुल बेटे। एक को बोलते हैं मुरक्कब मुफीद और एक को बोलते हैं मुरक्कब गैर मुफीद। मुरक्कब की कितनी किस्में हैं? मुरक्कब की दो किस्में हैं। एक को बोलते हैं मुरक्कब मुफीद और एक को बोलते हैं मुरक्कब गैर मुफीद। एक को बोलते हैं मुरक्कब मुफीद और एक को बोलते हैं मुरक्कब गैर मुफीद। लिख लिया बेटा? मुफीद, मुफीद, मुरक्कब गैर मुफीद, मुरक्कब गैर मुफीद। जी बेटा, अब हम मुरक्कब, पहले हम तारीफ करेंगे मुरक्कब मुफीद की तारीफ करेंगे। किसकी?
मुरक्कब की कितनी किस्में बनाई है? दो। कौन कौन सी? मुरक्कब मुफीद, मुरक्कब गैर मुफीद। मुरक्कब मुफीद और मुरक्कब गैर मुफीद। अब मुरक्कब मुफीद की तारीफ करेंगे। किसकी? मुरक्कब मुफीद। मुरक्कब मुफीद की तारीफ। ठीक है जी, मुरक्कब मुफीद की तारीफ लिखे जनाब। ठीक है जी, मुरक्कब मुफीद की तारीफ किसकी? मुरक्कब मुफीद। वो मुरक्कब बोले, वो मुरक्कब लिखते भी जाए। मैंने लिख दिया वो मुरक्कब के जब मदीना, समझो यहाँ मुरक्कब मुफीद देखें, वो मुरक्कब के जब बात करने वाला जी मुरक्कब मुफीद इस पर सकूत इख्तियार करे। देखें, इख्तियार करे यानी खामोश हो जाए। ये ब्रैकेट में यानी खामोश हो जाए, यानी नहीं बेशक ना लिखें, खामोश होने बताना चाह रहा हूँ सकून का मतलब। ये ब्रैकेट में यानी खामोश होने, बात करने वाला जो मुतकल्लिम है। ठीक है जी, मुरक्कब मुफीद की तारीफ वो मुरक्कब कि जब बात करने वाला इस पर सुकूत इख्तियार करे। सुकूत का मतलब होता है यानी खामोश हो जाए तो सुनने वाले को कोई खबर या तलब मालूम हो, तो सुनने वाले को कोई खबर या तलब मालूम हो। अब इसकी मिसालें मैं लिखवाता हूँ आपको मुरक्कब मुफीद की। मुरक्कब मुफीद की मिसालें लिखें। मुरक्कब मुफीद की मिसालें, मुरक्कब मुफीद की मिसालें लिखें जनाब। जैसे ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैदुन क़ाइमुन, ये मुरक्कब मुफीद की मिसाल है। इसका माना होगा ज़ैद खड़ा है। इसका माना ये होगा कि ज़ैद खड़ा है, ये इसका माना होगा। ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैद खड़ा है। ये ज़ैदुन को हम बनाएंगे मुब्तदा और ये क़ाइमुन को बनाएंगे खबर। क़ाइमुन को बनाएंगे खबर, मुब्तदा खबर, जुमला इस्मिया खबरिया। और ये मुरक्कब ताम है, ये मुरक्कब ताम है। ठीक है, समझ में आ गई मुरक्कब ताम कि वो मुरक्कब कि जब बात करने वाला इस पर सुकूत इख्तियार करे। सुकूत का मतलब होता है यानी खामोश हो जाए तो सुनने वाले को कोई खबर या तलब मालूम हो जाए। अब आप सुन रहे हैं ज़ैदुन क़ाइमुन, आपको एक खबर मालूम हुई कि ज़ैद खड़ा है, ज़ैद खड़ा है, ज़ैद खड़ा है। अल्लाहु रब्बी, अल्लाह मेरा रब है। मैं ये कह के खामोश हो गया तो आपको एक खबर मालूम होगी कि अल्लाह मेरा रब है। अल्लाह रब्बुना, अल्लाह हम सबका रब है। थोड़ा इधर एक मिसाल मैंने दे दी। ठीक है, ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैदुन ज़ैद खड़ा है, ये मुरक्कब मुफीद। अब एक और मिसाल देखें, एक और मिसाल इसकी मुरक्कब मुफीद की। एक और मिसाल मुरक्कब मुफीद की मिसाल इदरिब जी, इदरिब ज़ैदन, इदरिब ज़ैदन। इसका मतलब होगा ज़ैद को मार। ये इसका मतलब होगा
ज़ैद को मार। ज़ैदुन इद्रिब ज़ैदन, इद्रिब ज़ैदन, इद्रिब ज़ैदन, ये मुरक्कब ताम की मिसाल है। अच्छा ये इद्रिब फ़ेले अमर है, इद्रिब ये है फ़ेले अमर, और इसके अंदर अंता ज़मीर, कौन सी ज़मीर? अंता ज़मीर वुजूबन मुशीदा है, वुजूबन मुशीदा है। इसके अंदर इद्रिब के अंदर अंता ज़मीर वुजूबन मुशीदा है। ठीक है, ये है मुरक्कब ताम की मिसाल। किसकी मिसाल है? मुरक्कब ताम को मुरक्कब मुफीद भी बोलते हैं। मुरक्कब मुफीद, मुरक्कब, और इसको मुरक्कब ताम भी कहते हैं और जुमला भी बोलते हैं, इसी को जुमला भी बोलते हैं और कलाम भी इसको बोलते हैं। ये सारे इसके नाम हैं। मुरक्कब मुफीद को मुरक्कब ताम, जुमला और कलाम भी कहते हैं। इद्रिब ज़ैदन, ज़ैद को, तू ज़ैद को मार। इसके अंदर का ज़मीर वुजूबन मुशीदा है, ज़ैदन इसका मफ़ूल बिही, ये जुमला इंशाइया बन जाएगा। ठीक है, ये है मुरक्कब ताम, इसे जुमला और कलाम भी कहते हैं। मैंने मुरक्कब मुफीद को मुरक्कब ताम, जुमला और कलाम भी कहते हैं। इद्रिब ज़ैदन, तू ज़ैद को मार। इद्रिब ज़ैदन, तू ज़ैद को मार, यानी ज़ैद को मार। ये अच्छा मुरक्कब मुफीद की मैं मिसाल दे लूँ ना, मुरक्कब मुफीद को मुरक्कब ताम, जुमला और कलाम भी कहते हैं, जुमला और कलाम भी कहते हैं। मीज़ानुल सर्फ़ में हम आज इंशाअल्लाह फ़ेल की अक़साम पढ़ेंगे। मीज़ानुल सर्फ़ में फ़ेल की अक़साम पढ़ेंगे। फ़ेल की बुनियादी तौर पर 3 अक़साम है। ठीक है, फ़ेल की बुनियादी तौर पर 3 अक़साम है, फ़ेल माज़ी, फ़ेल मुज़ारे और फ़ेल अमर। बुनियादी तौर पर फ़ेल की 3 अक़साम है, फ़ेल माज़ी, फ़ेल मुज़ारे, फ़ेल अमर। बुनियादी तौर पर फ़ेल की 3 अक़साम हैं, माज़ी, मुज़ारे, अमर। मीज़ानुल सर्फ़ के अंदर हम पढ़ेंगे फ़ेल की अक़साम। बुनियादी तौर पर फ़ेल की 3 किस्में हैं, 3 अक़साम हैं। ठीक है, माज़ी, मुज़ारे और अमर, मुज़ारे और अमर, माज़ी, मुज़ारे और अमर। फ़ेल की अक़साम बुनियादी तौर पर फ़ेल की 3 किस्में, मेरे साथ बोलें, माज़ी, मुज़ारे, अमर। माज़ी, मुज़ारे, अमर। बुनियादी तौर पर फ़ेल की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में। कौन कौन सी? माज़ी, मुज़ारे, अमर। माज़ी, मुज़ारे, अमर। बुनियादी तौर पर फ़ेल की कितनी किस्में हैं? कौन कौन सी? माज़ी, मुज़ारे, अमर। अब हम तमाम की तारीफ़ात आपके सामने लिखते हैं। बुनियादी तौर पर फ़ेल की 3 किस्में हैं, माज़ी, मुज़ारे और अमर। माज़ी की तारीफ़ सबसे पहले आपके सामने ये, माज़ी किसे बोलते हैं? वो फ़ेल जो गुज़रे हुए ज़माने में किसी काम के होने पर दलालत करे। वो फ़ेल जो गुज़रे हुए ज़माने में किसी काम के होने पर दलालत करे, ये इसकी तारीफ़ है। अब मैं इसकी मिसालों से आपको समझाता हूँ। जी, वो फ़ेल जो गुज़रे हुए ज़माने में किसी काम के होने या करने पर दलालत करे, उसे बोलते हैं फ़ेल माज़ी। ठीक है, अब मैं इसको इसकी मिसालों से आपको समझाता हूँ। ये तारीफ़ आपने लिख ली, वो फ़ेल जो गुज़रे हुए ज़माने में किसी काम के होने या करने पर दलालत करे। अब मैं इसकी जी मिसाल मैं दे रहा हूँ। जैसे दाराबा है, दाराबा इसका माना होगा उस एक मर्द ने गुज़रे हुए ज़माने में मारा। क्योंकि ये माज़ी है तो गुज़रे हुए ज़माने में काम पर दलालत करेगा। उस एक मर्द ने गुज़रे हुए ज़माने में मारा। उस एक मर्द ने, दाराबा का मतलब ये होगा उस एक मर्द ने गुज़रे हुए ज़माने में मारा। दाराबा का मतलब क्या होगा?
उस एक मर्द ने गुजरे हुए ज़माने में मारा, ये माना होगा दराबा का। उस एक मर्द ने गुजरे हुए ज़माने में मारा, ये है फ़ेल माज़ी। पहले हमने तारीफ बताई आपको, उसके बाद इसकी मिसाल हमने आपको बताई। दराबा मारा, इसका मतलब होगा दराबा मारा उस एक मर्द ने गुजरे हुए ज़माने में। बुनियादी तौर पर फ़ेल की जो हमने पढ़ी 3 अक़साम, माज़ी, मुज़ारे, अमर। माज़ी की तारीफ़ और मिसाल दी। अब फ़ेल मुज़ारे किसे बोलती हैं? वो फ़ेल जो मौजूदा या आइंदा ज़माने में किसी काम के होने पर या करने पर दलालत करे। मुज़ारे वो फ़ेल जो मौजूदा या आइंदा ज़माने में किसी काम के होने या करने पर दलालत करे। ये मुज़ारे की तारीफ़ की मैंने। वो फ़ेल जो मौजूदा या आइंदा ज़माने में किसी काम के होने या करने पर दलालत करे। मसलन यद्रिबु, इसका माना होगा वो एक मर्द ज़माना मौजूदा या आइंदा में मारता है या मारेगा। इसका माना ये होगा वो एक मर्द ज़माना मौजूदा या आइंदा में मारता है या मारेगा। वो एक मर्द मारता है या मारेगा, ठीक है, ज़माना मौजूदा के अंदर या आइंदा ज़माने के अंदर। इससे मुराद ये होगी, यद्रिबु से मुराद ये होगी फ़ेल मुज़ारे वो फ़ेल जो मौजूदा या आइंदा ज़माने में किसी काम के होने पर दलालत करे। मसलन यद्रिबु फ़ेल मुज़ारे वो फ़ेल जो मौजूदा या आइंदा ज़माने में किसी काम के होने या करने पर दलालत करे। मसलन यद्रिबु का माना होगा वो एक मर्द मारता है या मारेगा मौजूदा ज़माने में या आइंदा ज़माने में। मौजूदा ज़माने में या आइंदा ज़माने में। यद्रिबु वो एक मर्द ज़माना मौजूदा या आइंदा में मारता है या मारेगा। ये है यद्रिबु का माना, ठीक है। यद्रिबु वो एक मर्द ज़माना मौजूदा या आइंदा में मारता है या मारेगा। मसलन यद्रिबु वो एक मर्द ज़माना मौजूदा या आइंदा ज़माने में मारता है या मारेगा। यह है मुज़ारे, फ़ेल मुज़ारे का यद्रिबु का तर्जमा। यह है मिसाल मुज़ारे की, यह है यद्रिबु। इसका माना होगा वो एक मर्द ज़माना मौजूदा या आइंदा में मारता है या मारेगा। बुनियादी तौर पर फ़ेल की 3 किस्में हैं। बुनियादी तौर पर फ़ेल की 3 किस्में हैं, माज़ी, मुज़ारे और अमर। माज़ी मुज़ारे की तारीफ़ और मिसालें मैंने दी हैं। आप अमर को देखें। अमर वो फ़ेल जिसमें किसी को आइंदा ज़माने में कोई काम करने का हुक्म दिया जाए। जैसे इद्रिब, तू एक मर्द आइंदा ज़माने में मार। अमर वो फ़ेल जिसमें किसी को आइंदा ज़माने में कोई काम करने का हुक्म दिया जाए। जैसे कहा जाता है इद्रिब मतलब तू एक मर्द आइंदा ज़माने में मार। अमर वो फ़ेल जिसमें किसी को आइंदा ज़माने में कोई काम करने का हुक्म दिया जाए। जैसे कहा जाता है इद्रिब तू एक मर्द आइंदा ज़माने में मार। इद्रिब तू एक मर्द आइंदा ज़माने में मार। तू एक मर्द आइंदा ज़माने में मार। तू एक मर्द आइंदा ज़माने में मार। तो बुनियादी तौर पर फ़ेल की कितनी किस्में पढ़ी हैं? सब बोलें। 3। कौन कौन सी? माज़ी, मुज़ारे, अमर। माज़ी, मुज़ारे और अमर, ठीक है। माज़ी, मुज़ारे और अमर।
ماضی کی تعریف کی ہے، اس کی مثالیں پیش کی ہیں، مضارع کی تعریف کی ہے، اس کی ہم نے مثالیں پیش کی ہیں۔ امر لکھا ہے ہم نے وائٹ بورڈ پہ، وہ فعل جس میں کسی کو آئندہ زمانے میں کوئی کام کرنے کا حکم دیا جائے، اس کی مثال، اس کی امر کی مثال اضرب، معنی کیا ہوگا؟ تو ایک مرد آئندہ